Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for grade 3. We are going to start unit 2. Its title is The Farmer and His Sons. Yes, my dear fellow teachers, I have divided this lecture into this unit into these lectures. You may follow the same petition, or you may revise it or modify it for your convenience. So this is the lecture division for this unit. And how we are going to do it? In lecture 1, under the title of grammar, we will learn about verb, that is action word, and we'll cover page number 17 and 18 of your book. And the SLO will be to use action verbs in speech and writing. Lecture 2 again, under the title of grammar, we will learn about pronouns, substitution words, and we will cover page number 18. SLO will be to recall substitution words learned earlier, recognize substitution words as pronouns, and identify and use pronouns in sentences. Lecture 3, under the title of grammar, we learn about singular, plural, page number 19. And the SLO is to recall changing number of simple naming words by adding and removing s and es, identify and change the number of nouns by adding ies or es after the words ending in y, o, etc. Use the alphabetical order first and second to arrange the words. Lecture 4, pronunciation skills, and we learn about silent letters, page number 17 of your book. And the SLO is to pronounce and spell simple words with silent letters as W in right and K in no. Lecture 5 will read and understand the text. We'll cover page number 14, 15 and 17 of your book, and the SLO is to use critical thinking to respond to the text post-reading. Lecture 6 will continue reading and understanding the text, and we'll also do comprehension, page number 14, 15 and 16, and we'll cover the SLO, locate specific information to answer short questions based on the text, and we'll write sentences of their own by using correct capitalization, punctuation and spellings. Lecture 7, listening and speaking, we learn to express regret, page number 19 and 20 of your book, and the SLO is to use appropriate expression in conversation to articulate, recognize and use formulaic expressions to express regret. Lecture 8, under the title of writing, we'll again learn the use of pronoun, page number 20 of your book, and the SLO is to fill in the missing information to complete a simple paragraph and identify and recognize the function of pronouns, identify and use pronouns in sentences. So in this way, we'll complete this unit 2 of your book, and now it's the time to understand it. The title of the story is The Farmer and His Son, and the theme of the story is ethics and value, and its subtitle is Respect for Elders. Yes, my dear students, as the title of the story is telling us कि ये story जो है ये एक farmer और उसके बेटों की है. और farmer कौन होता है? Do we know that? Farmer is a person जो कि who works on farm. और वो फार्म पे क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं, वो फार्म से डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड देन दे सेल दोस क्रॉप्स इन द मार्केट एंड दे गेट मनी आउट ऑफ इट. सो ये स्टोरी में एक फार्मर है जो कि अपने बेटों को अपने साथ काम करवाना चाहता है, और उसमें फिर क्या होता है वी इंशाल्लाह डिस्कस इट. लेट्स फोकस ऑन द थीम. इस स्टोरी से हमें जो सीखने को मिलेगा वो है एथिक्स एंड वैल्यू. व्हाट डज इट मीन? कि हमें इससे अखलाकियात का एक सबक मिलता है, हमें इससे इक़दार का एक सबक मिलता है. अब बेटा जो हमारी पूरी एजुकेशन है ना, उसका मकसद क्या है? हमें एक बेहतर इंसान बनाना. दिस इज़ व्हाट विद एवरी पासिंग डे वी शुड लर्न कि हमने आज क्या सीखा, हमने आज क्या अच्छी बात सीखी जो हमने अपने अमल में लानी है. ठीक है. और यहाँ से हमने क्या सीखना है? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कि हमने अपने बड़ों का एहतराम करना है. और बड़ों का एहतराम करना, जो हर बड़े का एहतराम ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे हाई लेवल किसका है? हमारे पेरेंट्स का.
एक बिल्कुल एक आम क्या इसको कहते हैं कि एक कॉमन सेंस की बात है कि जब हम बहुत छोटे, अभी भी माशाल्लाह आप थोड़े बड़े हैं लेकिन इतने बड़े नहीं कि आप अपनी हर काम अपने लिए करें. सो हु इज़ देयर टू हेल्प यू एवरी टाइम? कौन आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करे, आपके खाने की, पीने की, आराम की, आपको स्कूलिंग, आपकी बुक्स, आपकी एवरीथिंग. इवन आप डेली एक दिन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आप उनको गिन भी नहीं सकते. हु इज़ डूइंग दिस? योर पेरेंट्स. और फिर व्हाट दे वांट इन रिस्पॉन्स, जस्ट वी शुड लव देम एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम, राइट? और जितना ज़्यादा बेटा ये एक ऐसी चीज़ है, अभी से आपने आज आप लोगों ने बिफोर मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूं, एक आपको टास्क दे रही हूँ. आज आप सब लोगों ने घर जाकर अपनी मामा को, अपने बाबा को जस्ट गिव देम अ हग. उनको बहुत टाइटली आपने हग करना और उन्हें कहना है कि यू आर द बेस्ट मदर, यू आर द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड. यू विल सी वो कितने, इतना सा आपका एक जेस्चर होगा, वो इतने खुश होंगे कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी कितने अच्छे हैं. सो शो दिस. बेटा रिस्पेक्ट दिल में भी होनी चाहिए और हमें उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए. एक तो ये वे है कि आप उनको बताएं, दूसरा वे ये है कि उनको ओबे करें. और उसका क्या तरीका है, मैंने पहले भी पिछले ग्रेड्स में भी एक मरतबा आपसे ये बात की थी कि जब भी आपके मामा बाबा टीचर्स जब आपको कोई काम करने के लिए कहें या किसी काम को करने से स्टॉप करें तो आपने क्या कहना है, अपनी एक आदत बना लें. और वो क्या है? अच्छा जी. ओके, अच्छा जी. और ये सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, ये आपके अमल में भी हो. बिकॉज बेटा जब हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स हमें किसी बात से मना करते हैं तो उनका मकसद हमें डांटना या स्टॉप करना नहीं है. उसकी वजह ये होती है वो हमारे से बड़े हैं, वो अक्ल में समझ में भी हमसे बड़े हैं. वो हमें उस काम से जो नुकसान है उससे बचाना चाहते हैं. जो कि हम छोटे होते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आती तो हमें ये चीज़ बुरी लगती है. लेकिन हमने इसको माइंड बिल्कुल नहीं करना, इसको रियलाइज करें एंड बी थैंकफुल टू देम कि थैंक यू, आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे सही बात बताई, सही रास्ता दिखाया. ठीक है, तो विल यू डू दिस? गुड जॉब, यू आर सच अ गुड स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए यहाँ पर इस पोएम से भी हमें ये सबक मिलता है. अब इसमें क्या है, वंस देयर लिव्ड अ फार्मर हु हैड 2 sons. अब उसके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं. द एल्डर वॉज ग्रेट हेल्प फॉर हिज फादर. अब देखें, एक जो बड़ा बेटा है वो हमेशा अपने फादर की हेल्प करता है, उनकी मदद करता है. तो उसके फादर उसको कितना प्यार करते होंगे और कितना उसको चाहते हैं. लेकिन जो यंगर वन है ना, वो ज़रा लेजी है. लेजी मीन्स सुस्त है, काम करना उसको पसंद नहीं है. द एल्डर ब्रदर ऑलवेज टुक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर. अब वो बड़ा जो है वो अपने छोटे भाई, उसको पता है मेरा छोटा भाई ज़रा नखरे करता है, सुस्त है, उसका ख्याल भी रखता है. The younger one did not like to working on the farm. This is the problem. क्योंकि फार्म पे काम करना तो बहुत मेहनत की बात है. अब वो ये मेहनत करना नहीं चाहता. वो क्या कहता है? He asked his father for his share of the farm. वो कहता है मैंने फार्म पे काम नहीं करना, मेरा हिस्सा मुझे दे दें. The elder brother forbade him to do so. अब देखिए वो मना कर रहा है, forbade. He is stopping. Don't do this. इसका कोई फायदा नहीं होगा, आप ये गलत काम कर रहे हो. जब हमें कोई किसी गलती से रोकता है ना तो इमीडिएटली क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमें मना क्यों कर रहे हैं. लेकिन बेटा उसमें जो मसलहत और फ़ायदा है, अब देखें इसी स्टोरी में हम वो सीखेंगे कि उसने जब बात नहीं मानी तो क्या हुआ. बट ही डिड नॉट लिसन टू हिम. ही सोल्ड हिज शेयर ऑफ द फार्म एंड लेफ्ट द विलेज. अब उसने अपने फार्म का हिस्सा बेचा और गांव छोड़कर चला गया. और गया कहाँ है? द यंगर सन एंजॉयड हिमसेल्फ बाय होस्टिंग पार्टीज फॉर हिज फ्रेंड्स. देखिए उसने क्या किया, अपनी फैमिली को छोड़ा, पैसे इकट्ठे किए और अपने दोस्तों के साथ. नाउ ही वांट्स टू एंजॉय हिमसेल्फ, ही इज थ्रोइंग पार्टीज. अब उनको बुला रहा है, उनको खिला रहा है. दे आर, वो समझ रहे हैं कि बस लाइफ इज टू हैव फन. फिर क्या होता है? आफ्टर फ्यू डेज ही रैन आउट ऑफ द मनी. अब वो पैसा जो वो लेके आया था, जब वो खर्च कर रहा है तो वो तो ख़त्म होना था. जब पैसे ख़त्म हो गए तो सीइंग हिज फाइनेंशियल स्टेट हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम. उन्होंने कहा अब इसके पास कोई पैसा नहीं है, अब हमारी पार्टीज तो होनी नहीं, अब हम चलते हैं, अब हम किसी और फ्रेंड के पास जाते हैं. ही रिमेंबर्ड. अब उसको क्या ख्याल आया, हाउ काइंड हिज ब्रदर एंड फादर हैड बीन टू हिम एंड ही विश्ड ही हैड नॉट लेफ्ट होम. अब उसको ख्याल आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने घर छोड़ा, अपना शेयर जो है उसको सेल किया और सारे पैसे वेस्ट हो गए. अब मुझे घर नहीं था छोड़ना चाहिए. सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस. अब उसने कहा बेटा ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे से गलती होती है तो गलती को फ़ौरन से एक्सेप्ट करना और टू सीक फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग ले. आई एम सॉरी, आई रियलाइज कि मेरे से गलती हुई है, मैंने ये काम गलत किया.
So he did not know that his father missed him and wait he would come back. उसके father को, because for parents children are always very close to their heart, उसने कहा oh my God मेरा प्यारा बेटा कहाँ चला गया, I'm missing him. So the son fell his knees and filled with regret when he saw his father. वो घुटनों के बल बैठ गया, बाबा से माफ़ी मांगी, उनको कहा I'm so sorry, I did this wrong, now I realize. So उसने हर अपनी गलती को तस्लीम किया और माफ़ी मांगी. और बाबा ने क्या किया? He hugged him and then dressed him with fine clothes. बाबा ने फ़ौरन उसको माफ़ कर दिया. The younger son promised his father and his brother that he would work hard on the farm. He finally learned to respect his family and his elders. अब उसने कहा नहीं, मैं मेहनत करूँगा. और अब उसको इस चीज़ का पता चल गया है कि कितनी इम्पॉर्टेंट उसकी फैमिली और उसके बड़ों की नसीहत है उसके लिए. ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा? ऑलवेज मेक योर फैमिली योर प्रायोरिटी. बेटा आपकी फैमिली से बढ़कर, आपके पेरेंट्स से बढ़कर आपका वेल विशर और कोई नहीं हो सकता. हमें ऐसा लगता है कुछ लोग दे आर वेरी चमी, वो हमें अच्छे भी लगते हैं, दैट्स वेरी गुड, उनसे अच्छी बात ज़रूर सीखें. लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके मामा बाबा से बढ़कर आपको प्यार करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता. ये चीज़ आप यहाँ से अभी सीख लें. दे शुड बी योर प्रायोरिटी. उनकी बात माने, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात, उनकी नसीहत को फॉलो करें. राइट, एंड रिस्पेक्ट एंड ओबे देम एज इट इज़ योर ड्यूटी. बेटा अपने पेरेंट्स की बात मानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है. ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी मर्ज़ी हो तो मान लें, नहीं मर्ज़ी तो ना माने. नो नो नो, इट्स अ मस्ट. Yes, sometime if we are, अब मसला कहाँ होता है कि हमें कोई बात कही जा रही है और वो क्योंकि हमारी समझ कम होती है तो हमारी समझ में नहीं आती. सो यू मे आस्क कि हाउ, बहुत रिस्पेक्ट से आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें ऐसा करने से क्या फ़ायदा है या ऐसा ना करने का क्या फ़ायदा है. आप मुझे, यू आर स्टॉपिंग मी, सो व्हाट बेनिफिट. इस तरह से हमारी अक्ल में, हमारे इल्म में इजाफा होता है. और हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है. बेटा कुरान में सूरा अल इसरा वर्स 24 में बाकायदा ये बात हमें सिखाई गई है. एंड लोअर अनटू देम मीन्स अपने पेरेंट्स के लिए, द विंग ऑफ सबमिशन एंड ह्यूमिलिटी थ्रू मर्सी एंड से, यानी उनके सामने हमेशा झुक के रहें. देखिए पूरा अदब सिखा रहा है कुरान हमें, अपने पेरेंट्स के सामने हमेशा झुके रहें और उनके लिए रहमत की दुआ करें. एंड व्हाट दैट दुआ इज, माई लॉर्ड bestow on them your mercy as they did bring me up when I was small. या अल्लाह इन पे उसी तरह से रहम करे जैसे इन्होंने जिस शफ़क़त से, जिस मोहब्बत से मुझे पाला जब मैं बहुत छोटा था या जब मैं बहुत छोटी थी. राइट, ये पूरी दुआ है. और आई सजेस्ट बेटा आप सब लोग, दिस इज़ दुआ फॉर पेरेंट्स, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा. इस दुआ को याद करें, अपने कारी साहब की मदद से इस दुआ को लर्न करें. सुबह शाम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें और जो मोहब्बत आपके दिल में उनके लिए है उनको बताएं कि दे आर द बेस्ट पेरेंट एंड हाउ मच लव यू हैव फॉर देम. दिस इज़ द वे दे विल बी हैप्पी एंड यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ. एंड फाइनली आवर रब विल बी हैप्पी विद अस बिकॉज वी आर फॉलोइंग हिज कमांड. राइट, सो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अपने जहन में रखें और इनको अपने अमल में लाएं. अब इंशाल्लाह दैट्स इट फॉर टुडे. कल हम अपना यूनिट 2 का लेक्चर 1 ग्रामर स्टार्ट करेंगे. टिल द टाइम टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स वी लर्न्ड टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.